नाउ प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, राइट? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट and energy is the ability or the capability of an object to perform work. So energy and work, they are interrelated terms, right? Then we also discussed kinetic energy, that it is the energy that an object has when it is in motion, and we obtained the formula for kinetic energy as half mv square, or the change in kinetic energy as half mv square minus half mu square. अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो वी विल यूज हाफ mv square. Now there is a theorem which relates work and energy. Theorem says, it is the work energy theorem or work energy principle. This theorem states that work done by net force in displacing a body is equal to the change in kinetic energy of the body, right? अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास मास m का, उस पे हमने फोर्स लगाई एंड उस ऑब्जेक्ट ने कोई वर्क डन किया, राइट? या उस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क डन हुआ एंड वो ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव कर रहा था u वेलोसिटी से और उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mu स्क्वायर. फिर फोर्स लगने पर वेलोसिटी चेंज हो गई v and the object gained kinetic energy half mv square. So if we calculate the change, so this is work energy theorem. The work done by net force in displacing an object is equal to the change in kinetic energy of the object. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, W is equal to delta K. This delta sign, it indicates change. ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और ये वैलिड भी है. जैसे हम बोल ही रहे हैं कि वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर रिलेटेड. आप वर्क बोलो, एनर्जी बोलो, ऑलमोस्ट एक ही बात है. So work done is equal to change in kinetic energy. ठीक, hence we can say that work and kinetic energy are equivalent quantities. ठीक, जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे आप एक फोर्स लगा रहे हो, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. वहीं अगर आप उस ऑब्जेक्ट पर एक ऑपोजिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाते हो तो वर्क डन कम होगा एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट्स हाउ वर्क एंड एनर्जी दे आर रिलेटेड. सो देयर इज अ स्मॉल डेरिवेशन which is associated with this topic. Let's discuss that derivation. And ये derivation जो अब हम करेंगे ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए डिराइव किया था. ठीक, suppose there is an object of mass m moving with initial velocity u. ठीक है इस ऑब्जेक्ट के पास एक इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u. अ फोर्स f वेक्टर लेट्स से, या f ही रहने दो, जैसा मैग्नीट्यूड में अगर हम लेते हैं तो अ फोर्स f is applied on the object which increases the speed to v thereby the object covers a small displacement, let's say ds, and the object covers a small displacement ds
इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड. ठीक. Why I am writing this? Because this you have to write in your exam. आप एग्जाम में डायरेक्ट डिराइव करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि हमें सिचुएशन क्या गिवन है, देन यू हैव टू डिराइव. ठीक. एंड लेट एक्सीलरेशन A is produced in the object. Okay. नाउ अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट ने ds डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, सो दैट मीन्स देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. एंड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी dw is equal to f into ds. Basically f ds cos 0 आएगा, cos 0 is 1, so it's f ds. ठीक. Now f can be written as m into a. ठीक है. f is m into a, mass into acceleration, and a can be written as rate of change of velocity, m dv by dt. Correct. That means work done becomes dw is equal to m dv by dt into ds. Clear? Now ds by dt. What is displacement upon time? Velocity. Right? So यहां से dw आपके पास आ जाएगा mv dv. Now this is the small amount of work done. So if we need to calculate the total work done, what should we do? We should integrate this. So let's integrate. So integration of dw is equal to integration of mv dv. And limits कहां से कहां जाएंगे? ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी को v कर दिया गया. सो लोअर लिमिट विल बी 0 एंड अपर u एंड अपर लिमिट विल बी v. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, सो वेलोसिटी की लिमिट्स लगाओगे u एंड v. सिमिलरली वर्क के लिए 0 and w. That's it. Just integrate it, put the limits, you will have your answer. So यहां से आ गया work is equal to m कॉमन है, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये बना v dv. So how you will integrate it? एक पावर बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो. So work is equal to m v स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स है u से v. नाउ फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन गया? w इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. दैट्स इट. बस इतनी छोटी सी डेरिवेशन है. that the work done by a net force is equal to the change in kinetic energy of the body. इसको आप किस तरह भी लिख सकते हैं, that W is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial. Right? That means work done is equal to increase in kinetic energy of the object. So that means अगर एक ऑब्जेक्ट पे वर्क डन होगा तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. एंड इफ वर्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉडी,
then kinetic energy will decrease. ठीक है. Similarly, if work done is positive, kinetic energy will increase. If work is negative, kinetic energy will decrease. Find the average frictional force needed to stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meters if the initial speed is 72 kilometers per hour. Right? क्या यहाँ पे मास आपको गिवन है 500 kg, इनिशियल स्पीड गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, सो दिस बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड. ठीक. एस गिवन है 25 मीटर्स. You have to stop a car, that means final velocity is 0. ये सब आपको गिवन है. आपको फोर्स कैलकुलेट करना है. स्ट्रेट अवे लिखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो बस वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस बिकम्स हाफ m v square minus u square. Put the values and solve. So f आपको निकालना है. s 25 है, हाफ 500 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर. सॉल्व कर लो. This becomes minus 400. नेगेटिव आंसर आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है. सो व्हेन यू सॉल्व इट, इसको कट कर लो, ये और ये कट हो गया. सो दिस बिकम्स माइनस 4000 न्यूटन. सो यू हैव रिड्यूस्ड द क्वेश्चन टू ओनली 2-3 स्टेप्स. नाउ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब ये क्या होती है? सपोज करिए कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. ठीक. उस ऑब्जेक्ट की कुछ एक इनिशियल पोजीशन है. अब उस ऑब्जेक्ट पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं एंड लेट्स से वो ऑब्जेक्ट मूव करके एक न्यू पोजीशन पे पहुंच जाता है जो उसकी फाइनल पोजीशन है. ठीक. अब अगर हम इस सिचुएशन में वर्क डन कैलकुलेट करें, राइट, कि आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे मूव करके कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो अगर हम एक वर्क डन कैलकुलेट करें एंड वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे कि भाई ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी थी और फाइनल पोजीशन कौन सी थी, कि ऑब्जेक्ट को कहां से हमने मूव कराना स्टार्ट किया और कहां पे जाके स्टॉप किया, तो वो कहलाएगी कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक किस पाथ से लेकर गई. समझ आई मेरी बात? ठीक है. इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट changes its position from initial to final. So if we calculate the work done and that work done depends only on the initial and the final positions of the object and it does not depend on the path that has been taken between the initial and final positions, then the force that has been applied on the object is called as a conservative force. ठीक है? Yes.
सो वी हैव अ फर्स्ट पोजीशन एंड अ सेकंड पोजीशन. अब इन दोनों पोजीशंस में मैं लेट्स से एक ऑब्जेक्ट को इस पाथ से इस पाथ पर लेकर गई. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर इस पाथ पे ले गई. एक बार हम ऐसे ले गए, एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करा इसने, करेक्ट. एंड लेट्स से एक बार थोड़ा सा हम घुमा घुमा के पता नहीं कहां से फिर फाइनल पोजीशन पर पहुंचे. ठीक, अगर एक ऐसी फोर्स अप्लाई करके हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया है जो सिर्फ ये देख रही है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन क्या थी और सेकंड पोजीशन क्या थी, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं उसको ब्लू ग्रीन या रेड कौन से पाथ से उस पोजीशन चेंज करके लेके गई हूं, वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा. ठीक, और अगर एक ऐसी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो जिस फोर्स की वजह से इफ यू कैलकुलेट द वर्क डन एंड दैट वर्क डिपेंड्स ऑन द path that has been followed between the initial and final positions, then such a force is called as non-conservative. ठीक है, एग्जाम्पल अभी समझाती हूं, इसको पढ़ो क्या लिखा है. A force is said to be conservative if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final positions of the body and not on the nature of path followed between the initial and final positions. That means the work done between fixed initial and final positions will be same. आप तीनों में से किसी भी रास्ते से आप ऑब्जेक्ट को मूव करा लो, वर्क डन हर बार सेम ही आएगा, तब ऐसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी. ठीक, यहां क्या है, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन दीज टू पोजीशंस. मतलब अगर हम ऊपर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कंसिडर करें, सो जो ये 3 पाथ्स फॉलो किए गए हैं, तीनों पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क डन. हर पाथ का वर्क डन डिफरेंट आएगा. ठीक, अब ये क्यों है ऐसा, देखो. जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. क्यों, अब रीजन देखो यहां पे, सुनना. ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, 2 मासेस है मेरे पास, बीच में एक डिस्टेंस है उनके, राइट. फोर्स G m1 m2 by r² आएगा. ठीक है, अब देखो, मान लो ये फर्स्ट मास है, ये सेकंड मास है, क्लियर, और इनके सेंटर्स के बीच में ये है r डिस्टेंस, लेट्स से. ठीक, बोथ ऑफ देम विल एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन अनदर. ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट. क्लियर. अब यहां पर अगर हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें, G m1 m2 by r², अब ये फोर्स मैं सीधे ऐसे रास्ते से देख लूं, या ये फोर्स हम ऐसे घुमा घुमा कर देख लें, या ये वाली फोर्स मैं पूरा ऐसे लंबा घुमा के लेट से यहां पहुंच जाऊं. इनिशियल और फाइनल पोजीशंस फिक्स्ड हैं. वो ये कह रहा है कि वर्क डन सेम तब होगा जब इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम रहे. तो आप किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क डन हर बार सेम ही रहेगा. क्लियर. सो ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर मेरा m1 और m2 की पोजीशंस फिक्स्ड है, तो किसी भी पाथ से मैं
इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं वो हर बार सेम ही आएगी, बिकॉज आर डिस्टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इट इज अ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब दो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखा जाए, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, चाहे वो ऑपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स, सिमिलर चार्जेस हो तो रिपल्सिव फोर्स, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो भी सेम है कि आप Q1 और Q2 इनकी पोजीशंस फिक्स कर दो, फिर चाहे आप इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी पाथ से कैलकुलेट करो कि मैं मान लो, या रुको, ये एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं सीधा इस पोजीशन पर ले गई या मैं ऐसे घुमा कर इस पोजीशन पे ले गई, इट डजंट मैटर। मैग्नेटिक फोर्स भी सबका यही एक्सप्लेनेशन है कि आप किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क हमेशा सेम आएगा। सपोज करो A and B, these are the two positions, and there is an object which is moved from this position A to position B, let's say on a rough table. Suppose अभी मैं सीधा ही पाथ ले रही हूं, ये एक रफ टेबल है, रफ ताकि फ्रिक्शन आए, ठीक। अब जो वर्क डन होगा अगेंस्ट दिस फ्रिक्शनल फोर्स, वो हम कह रहे हैं कि डिपेंड करना चाहिए कि भाई ए और बी तक पहुंचने में क्या पाथ हमने लिया, करेक्ट। अब कैसे होगा ये? देखो, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, मान लीजिए, ठीक है, और मैं इस टेबल पे लेट्स से बिल्कुल सीधा पाथ फॉलो करते हुए यहां पर ऑब्जेक्ट को ले आई, ठीक, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट को मूव कराया और बी फाइनल पोजीशन पर ले आए। तो जब ए से बी तक ये ऑब्जेक्ट मूव करके गया, कॉन्टिन्यूअसली उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, क्लियर है? अब मान लो मैंने अब क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, कि मैंने अब ये जो रफ टेबल है, इस रफ टेबल को हल्का सा लिफ्ट अप कर दिया। लेट्स से अब ये कुछ ऐसी पोजीशंस हो गई, ए एंड बी, ठीक। अब हम इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से मूव करा के बी पोजीशन पर लेके जाएंगे, क्या फ्रिक्शन में फर्क आएगा? बोलो। देखो इधर, अगर ये एक सीधा सीधा प्लेन है, लेट्स से इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड्स, क्लियर। आपने सपोज इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है और इधर फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर क्या हो रहा है, R इज बैलेंसिंग mg, तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है और फ्रिक्शन है जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बट सिंस ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम रहेगा एक्सटर्नल फोर्स से। अगर उस डायग्राम की बात करें, इंक्लाइंड प्लेन है, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, बट रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगी। अब हमें इस रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। फ्रिक्शन कहां है? अगर मैं ऊपर लेके जा रही हूं, फ्रिक्शन इस तरफ है, तो जब हम इस R को रिजॉल्व करेंगे, लेट्स से इसका
एक कंपोनेंट सपोज कर लो इधर आ गया, एक कंपोनेंट यहां कहीं चला गया, तो ये कंपोनेंट और फ्रिक्शन ऐड नहीं होंगे, अब ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा ऑब्जेक्ट पे। अगर फ्रिक्शन फोर्स अब इंक्रीज हो गई है, सो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द वर्क डन ऑल्सो। क्या कह रहा है कि मान लीजिए दिस इज पोजीशन ए एंड दिस इज अ फाइनल पोजीशन बी। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें, एक ऑब्जेक्ट को हमने ए पॉइंट से मूव कराया और वापस ए पर ही ले आए, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस सेम हो गए, हेंस वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0. But this is not the case with a non-conservative force. Why? See, if a body is brought back to its initial position, work has to be done against frictional forces which oppose the motion always. चाहे आप यहां से यहां ले जाओ ऑब्जेक्ट को, फ्रिक्शन ने ओपोज ही करना है, चाहे बी से वापस ए पे ले आओ, फिर भी फ्रिक्शन ने ओपोज ही करना है। हेंस नेट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ राउंड ट्रिप इज नॉट 0. यहां पर वर्क डन 0 नहीं होगा। कौन सा वर्क डन? जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट किया गया है, क्योंकि यहां पे पाथ डिपेंडेंट है वर्क। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें आप पॉजिटिव चार्जेस को हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करा सकते हो, ठीक है। 2 चेम्बर्स होते हैं जिनका ऐसे डी शेप होती है, ठीक, और इनके अंदर मान लो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को एंटर कराते हैं, फिर ये घूमता है, फिर बाहर आता है, फिर ये घूमता है, और ये बड़ा सर्कल करता चला जाता है, और अल्टीमेटली ये यहां से बाहर आ जाता है। एक विंडो होती है, उससे ये बाहर आ जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, जब इस पॉजिटिव चार्ज को आप हाई वेलोसिटी, हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करा रहे हो, ये कॉन्टिन्यूअसली एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्लियर। जब ये सर्कल में घूम रहा होगा, जहां ये पहुंचा इनिशियल पोजीशन, जहां से इसने शुरू करा इनिशियल पोजीशन से, एक राउंड ट्रिप लेके ये वापस पहुंचेगा ही पहुंचेगा इनिशियल पोजीशन पर, ठीक। लेकिन जिस वक्त ये पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके वापस एक राउंड ट्रिप करके इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो चुकी होगी। फिर मान लो अब वो थर्ड टाइम राउंड ले रहा है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट राउंड में थी, फिर जितनी काइनेटिक एनर्जी सेकंड राउंड में थी, थर्ड राउंड में उससे भी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली उसको एक्सीलरेट करा रहे हैं और वो घूमता जा रहा है इसके अंदर। तो हो क्या रहा है, अब एनर्जी है ना उसके पास, अगर एनर्जी है दैट मीन्स वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा है, इवन इफ पार्टिकल एक राउंड लेकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट रहा है, पहले जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था घूमकर फिर वापस वो वहीं आ रहा है, उसके बावजूद वर्क डन 0 नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जब वो एक राउंड ट्रिप कर रहा है, उसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी, फिर उसने एक और राउंड ट्रिप किया, तो पहले के कंपैरिजन में अब उसने और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। इवन इफ द पार्टिकल हैज रिटर्न्ड टू इट्स इनिशियल पोजीशन, बट सिंस द पार्टिकल हैज
more kinetic energy as compared to the first round. So work done is not zero over here, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है पाथ पर, किस पाथ से वो लौटा। पहले एक छोटा सर्कल लिया, फिर बड़ा सर्कल लिया, फिर और बड़ा सर्कल लिया,